So let's start it again. What's our A? Our A is this transformation. 1, 2, 3, 4. 1 image of 1. What's image of 1? It's 2, then 3, then 4, then 5. And what's our B? It's again 1, 2, 3, 4, so on and so forth. 1 1 A पे A पर हाँ यस मीटिंग में कुछ उनको कहे फिर से इसमें ज्वाइन करे मैं यहाँ नहीं आ रहा उनका B इक्वल टू दिस थिंग खैर A पे आएगा 1 1 हमने लिखा A goes to 2 A पे 1 goes to 2 इट्स करेक्ट और B पर हमने फिर एक्चुअली A पावर M शायद निकाला था वो हमने गलत किया जरा हम इसको हम फिर से चेक करेंगे व्हाट्स द इमेज ऑफ 1 एंड B इट्स 1 इट्स फर्स्ट 1 then it's 2 3 and continue so what's B power M B power M A power N हमें निकालना है B power M okay B is this okay B को अगर हम M टाइम्स करेंगे ना कंपोज इसके पहले हमने इसको n टाइम्स किया था कंपोज है ना तो B को अगर हम करेंगे ना M तो यहाँ पर हम M लिखेंगे then M plus 1 then M plus 2 so ये सब की इमेज 1 आ रही है यहाँ तक और इसके बाद ये 2 A में क्या हो रहा है 1 goes to n plus 1 okay and what's the image of 2 that's n plus 2 and 3 that's n plus 3 and 4 that's n plus 4 now it's okay this thing it's equal to 1 की इमेज 1 है यहाँ पर 1 की इमेज क्या है अब मैं पहले 1 2 3 और फाइनली यहाँ पर आपको m भी देखना है फिर m plus 1 भी देखना है फिर m plus 2 भी देखना है ये चीज़ें so 1 image of 1 is 1 but image of 1 is n plus 1 it's here n plus 1 image of 2 is 1 image of 2 is 1 but image of 1 is n plus 1 again इसी तरह से 3 4 अब m की इमेज भी 1 है m की इमेज 1 है but what's the image of 1 it's again n plus 1 okay तो ये सारे n plus 1 पर जा रहे हैं अब m plus 2 की इमेज क्या है m plus 2 की इमेज क्या है 1 m plus 1 की इमेज 1 है और 1 की इमेज फिर से n plus 1 है n plus 1 इसके बाद m plus 2 की इमेज 2 है और यहाँ पर 2 की इमेज n plus 2 इसके बाद ये इंक्रीज होगी and you can easily see that if we choose two pairs of non-negative integers m and qr then beta power m a power n is not equal to b power q a power r suppose देखिए अगर सपोज n डिस्टिंक्ट दो n's आप लोगी दो n's अगर आप लोगी n1 और n2 तो जब आप बी एम के साथ n1 को कंपोज करोगे उस केस में 1 की इमेज आ जाएगी n1 plus 1 मगर जब इसी बी एम को an2 के साथ कंपोज करोगे उस केस में इसकी इमेज आ जाएगी n2 plus 1 तो दे आर नॉट सेम इसी तरह से अगर आप m को चेंज करोगे n को फिक्स रखोगे m को जब आप चेंज करोगे यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर m की इमेज तो n plus 1 है सपोज अगर m5 है 5 की इमेज n plus 1 है और आपने दूसरा m चूज किया 6 की इमेज भी n plus 1 ही है और किसी न किसी जगह डिस्टिंक्ट होगा से 7 आप देख सकते हैं अगर m5 होगा तो 5 की इमेज आ जाएगी n plus 1 ओके 5 की इमेज आ जाएगी n plus 1 5
6 की इमेज भी आ जाएगी n+1, मगर 7 की इमेज आ जाएगी n+2, 7 की इमेज n+2 आ जाएगी. So you can see actually they are actually distinct. अगर हम m और n को different choose करेंगे, these transformations are actually distinct. They are not same. They are not same transformations. So you can write it as, let m n p q they are greater or equal to 0, such that the pair m n is not equal to p q. Then bm an is not equal to b power q a power q. So therefore this set bm an for m greater or equal to 0, n greater or equal to 0, this is a set of distinct elements. ये तो होता ही distinct है. आप सेट ना लिखिए, आप लिखिए डायरेक्ट. सेट का मतलब ही डिस्टिंक्ट है, तो आप लिखिए elements. Therefore the elements b m a n are distinct, and hence इनकी जो प्री इमेजेस होगी b m a n रो are also distinct. ये भी distinct होगी. For all m greater or equal to 0, n greater or equal to 0, they are all distinct. Okay, now let us see the product actually here. Product आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो प्रोडक्ट इसका. Now if we work in modulo row, okay, modulo row means you take the elements are actually row related. We can define the product like this. Now for all m n p q greater or equal to 0, if you take two elements, so then b m a n of row class, and take the another row class b p a q of row class. This is equal to row class of the following element b m a power q minus p plus n, if of row class. Okay, row class of this, it's row class of this. एक्चुअली आपको करना क्या है, आपको ये देखिए, आपको ये a पावर n और b पावर p आपस में जोड़ना है इनको. तो if this n is greater or equal to p, अगर n p से बड़ा होगा या p के बराबर होगा, तो n को आप लिख सकते हो p प्लस n माइनस p प्लस n माइनस p. तो a पावर n माइनस p आप अलग लिखोगे, a पावर n माइनस p, और फिर जो a पावर p है ना, उसको आप इस b पावर p से जोड़िए. a पावर p b पावर p 1 के बराबर होगा. तो यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा a पावर n माइनस p रहेगा यहाँ पर, और इसके साथ a पावर q भी है, सो इट्स a पावर n माइनस p प्लस q, वही है a पावर n माइनस p प्लस q. ये b पावर m ऐसे रहेगा. एक्चुअली अंडर रो ab इज इक्वल टू 1, सो दैट मीन्स अंडर रो अगर आप कोई भी निकालोगे, कोई भी a स्क्वायर b स्क्वायर, ये भी 1 के बराबर आ जाएगा, a क्यू b क्यू वो भी 1 के बराबर, ये सारे 1 के बराबर आ जाएगा. रो 1 आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगी. तो यहाँ पर जब आप लोगे n ग्रेटर इक्वल टू p, तो पावर हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, इसका आपको ख्याल रखना है. जब आप लोगे n ग्रेटर इक्वल टू p, सो दैट मीन n माइनस p इज ग्रेटर इक्वल टू 0, तो आपका n माइनस p जो है ना, वो ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा.
तो आप a पावर n को इस तरह लिख सकते, a पावर n इक्वल टू a पावर n माइनस p देन a पावर p, इसको आप इस तरह लिख सकते हो बिकॉज a पावर n माइनस p इज वेल डिफाइंड, इट्स अ नॉन नेगेटिव पावर। इस a पावर p को आप इस b पावर q के साथ जोड़ोगे, इट्स रो ऑफ a पावर p b पावर q, दैट्स रो ऑफ a पावर p b पावर p दैट्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पर सिर्फ रहेगा a पावर n माइनस p और फिर बाद में a पावर q भी इसके साथ आ जाएगा, इट्स a पावर q माइनस p प्लस z। अब अगर ये p ही बड़ा होगा, अब p इज ग्रेटर देन m, तो आपको यहाँ से इसको फैक्टर करना है b पावर p को। p अगर बड़ा होगा, अगर p अब बड़ा होगा n से, p होगा बड़ा किससे, n से, आप b पावर p को ऐसा लिख सकते हो, b पावर p इज इक्वल टू b पावर n इंटू b पावर p माइनस n, बिकॉज p माइनस n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो b इस b पावर n और इस a पावर n, ये जो है a पावर n b पावर n अप्रूव दैट्स इक्वल टू 1, ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ रहेगा b पावर m, ये a पावर n और b पावर n 1, तो यहाँ रहेगा b पावर p माइनस n प्लस q, p माइनस n प्लस q, b पावर p माइनस n प्लस q, और ये फाइनली a पावर q वहीं रहेगा, इट्स रो क्लास। और इसको आप फिर से सिंप्लीफाई कर सकते, इट्स b पावर m तो पहले आपके पास है b पावर m, तो b पावर k आपने a को किया यहाँ पर, ठीक, आपने a एक्चुअली लिखा है, आपने ये a पावर n तो वही है ना, a पावर n देन b पावर, ये 1 मिनट इसमें कुछ, ये इसके बराबर आ जाएगा, इट्स इक्वल टू दिस, it's equal to the row class of this element, if n is less or equal to p, in that case it's equal to b power m minus n plus p a पावर q तो वही रहेगा, a पावर q के साथ आपको कुछ नहीं करना है, रो if now this p is greater or equal to n, okay, p is greater equal to n means p minus n is greater equal to 0, so this thing is well defined। तो इस केस में आप क्या करोगे, b पावर p को लिखोगे b पावर p minus n, आप इसको ऐसे, पहले आप इसको एक ही रो क्लास में जोड़िए, दिस इज द रो क्लास ऑफ b पावर n a पावर n b पावर p a पावर q, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, b पावर n b पावर m है, सॉरी b पावर m a पावर n, और यहाँ पर आप लिखोगे b पावर n देन a पावर, सॉरी इट्स b, मैं इसको फिर से गलत कर रहा हूँ, ये मैंने भी ये गलती की थी, b पावर n को, b पावर p को लिखेंगे b पावर n माइनस p, बिकॉज n माइनस p इज ग्रेटर इक्वल टू 0, देन वी हैव a पावर q ऑफ रो, और ये वाला 1 के बराबर है, दिस वन इट इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा b पावर m प्लस n माइनस p, b पावर m प्लस n मैंने p को लिख दिया है, p n माइनस p, एक्चुअली p माइनस n लिखना था, p माइनस n आपको लिखना है यहाँ पर, p माइनस n, ओके, दिस इज b पावर m, a पावर n इज ओके, a पावर n में आपको कन्वर्ट करना है, b पावर n आपको यहाँ पर लिखना है, देन b पावर p माइनस n, ओके, और a पावर q है, दिस थिंग इज इक्वल टू 1, इट्स b पावर m, then it's b power p minus n, so it's b power m minus n plus p and a power q, वही मैंने ऊपर लिखा, b power m minus n plus p आप रोक, तो ये आप रफ पर कर सकते, इट्स वेरी सिंपल, इफ n is less or equal to p, आपको ये थोड़ा सा ये चेंज करना है, पावर्स को थोड़ा सा चेंज करना है बस। और इसको हम सिंपल करेंगे, विल सिंप्लीफाई इट मोर। हमारी क्लास
क्या क्लास है 4 बजे? 1 मिनट, इसको पहले थोड़ा इसको हम फिनिश कर लेंगे इस टॉपिक को ना, बस ये हो गया. सो वी कैन मोर सिंप्लीफाई इट, वी कैन मोर simplify it by defining this: b power m a power n row class, then b power p a power q row class. This thing it's equal to b power m minus n plus t, b power m minus n plus t, then we have a power q minus p plus t, q minus p plus t, m minus n plus t, यहाँ पर लिख दिया हमने m minus n plus t, जो प्लस है. और सेकंड केस में क्या है, q, सेकंड केस में a का पावर चेंज हो रहा है, इट्स a पावर q minus p प्लस, मैंने इसको t कर दिया. अब ये t क्या है, दिस इज द रो क्लास ऑफ दिस एलिमेंट, रो क्लास ऑफ दिस. और इसमें ये जो आपके पास t है, व्हाट्स दिस t, वेयर दिस t इज इक्वल, इट्स इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एन पी, क्योंकि आप वही कर रहे हैं, एन लेसर इक्वल टू पी और एन ग्रेटर इक्वल टू पी, और आपको ये फार्मूला आ जाएगी. तो एक्चुअली ये जो प्रोडक्ट है, इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ एक्चुअली द पेयर्स एम एन एंड पी क्यू, वही चेंज, बाकी बेस तो वही रह रही है, बी ए यहाँ पर बी ए, सिर्फ ऊपर पावर्स जो इसके है वो क्या है, दे आर द पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, फर्स्ट पेयर इज एम एंड सेकंड पेयर इज पी क्यू. आप इनका प्रोडक्ट आप इसके बराबर लिख रहे हो. सो यू कैन सी दिस सेमी ग्रुप, दिस मोनाइड जो आपने बी डिफाइन किया, thus the monoid B is isomorphic to n0 cross n0. What's n0? N0 is set of non-negative integers, n0 cross n0. It's isomorphic to this with the where the product in n0 cross n0 with multiplication defined by mn क्योंकि वही जो पावर्स है आपके पास वही यहाँ पर भी आ जाएगा सेम. इट्स इक्वल टू m minus n plus t. What's t? T is maximum of np. Okay, t is maximum of np. और सेकंड टर्म क्या रही थी, q minus p plus t. t is maximum of np. So this semigroup B जो आपने ऊपर कंस्ट्रक्ट किया, इट्स आइसोमॉर्फिक टू n0 क्रॉस n0. Why? What's this n0? n0 is the set of these non-negative integers. And this semigroup is called bicyclic semigroup. Bicyclic semigroup. तो आपका जो B आ गया, that's isomorphic to bicyclic semigroup. This thing. So that's the end of this lecture.